تحریک انصاف کو لاہور میں جلسے کی مشروط اجازت مل گئی۔ جلسہ مینار پاکستان پر نہیں، کاہنہ میں ہوگا۔ جلسے کے ٹائم پر پی ٹی آئی اور ضلعی انتظامیہ میں ڈیڈ لاک۔ آتش بازی کی اجازت نہیں، سیکیورٹی کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی قیادت کی ہوگی۔ پولیس کی مشاورت سے جلسے کے اطراف میں کنٹینرز، خاردار تاریں لگیں گی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی مشاورت کے بعد جلسے کے مقام کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈی سی کی صدارت میں اجلاس میں اسپیشل برانچ نے مینار پاکستان میں جلسے کی بجائے کسی اور جگہ پر ایس او پیز کے ساتھ جلسے کی اجازت کی تجویز دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو آج ہی جلسے کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ادھر مینار پاکستان کے گیٹس کو تالے لگا دیے گئے، شہریوں کو بھی داخلے کی اجازت نہیں۔ لاہور کے داخلی راستوں پر کنٹینرز کو روک دیا گیا۔ کیا گارنٹی ہے کہ جلسہ پرامن ہوگا؟ اسلام آباد کے جلسے میں صرف خیبر پختونخوا کے لوگ آئے، راستے بند کرنے، کنٹینرز لگانے کا پروپیگنڈا نہ کریں۔ پنجاب سے لوگ نہیں مل رہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ کسی کو روکا ہے نہ ہی روکا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی پنجاب میں مقبول نہیں، جھوٹے بیانیے بنا کر یہ کب تلک عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہیں؟ ادھر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا مرکزی قافلے کو خود لیڈ کرنے کا فیصلہ، رکاوٹیں ہٹانے کے لیے مشینری ساتھ لے جائیں گے۔ لاہور جلسے کے لیے پشاور میں 3 کنٹینرز تیار، کنٹینرز میں صوبائی قائدین اور اراکین اسمبلی موجود ہوں گے۔ کارکنوں کا لہو گرمانے کے لیے ساؤنڈ سسٹم بھی نصب۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ پتہ نہیں حکومت مینار پاکستان پر جلسے سے خوفزدہ کیوں ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس پر عمل درآمد شروع۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ججز کمیٹی تبدیل کر دی۔ دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر کو 3 رکنی کمیٹی سے باہر کر دیا گیا۔ جسٹس امین الدین خان کمیٹی کے رکن نامزد۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کا نوٹیفکیشن جاری۔ جسٹس امین الدین خان سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ بھی ججز کمیٹی کا حصہ۔ 3 رکنی ججز کمیٹی بینچز کی تشکیل اور انسانی حقوق کے مقدمات کا جائزہ لیتی ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس پیر کو متوقع۔ گزشتہ روز کے اجلاس میں آرٹیکل 63 نظر ثانی اپیلیں ایجنڈے میں شامل تھیں۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی نمائندگی ختم۔ اسپیکر کے خط کے بعد اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی۔ تمام 80 اراکین کو سنی اتحاد کونسل کا ظاہر کیا گیا۔ اس سے قبل 39 اراکین کو پی ٹی آئی اور 41 کو آزاد ظاہر کیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کی 110، پیپلز پارٹی کی 69 اور ایم کیو ایم کی 22 نشستیں، قاف لیگ کی 5، آئی پی پی کی 4، مسلم لیگ ضیاء، بی اے پی اور نیشنل پارٹی کی 1 سیٹ۔ سنی اتحاد کونسل کے 80، جے یو آئی کے 8 اراکین۔ الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد سے 23 مخصوص سیٹس نون لیگ، پی پی اور جے یو آئی کو ملیں گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے 1 روز پہلے الیکشن کمیشن کو خط میں مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کے لیے خط لکھا تھا۔ تحریک انصاف نے 38 اراکین قومی اسمبلی کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایم این ایس کا نوٹیفکیشن روکنے کا کوئی آئینی، قانونی اور اخلاقی جواز نہیں۔ سپریم کورٹ نے 14 سپٹمبر کو واضح کر دیا تھا کہ سارا ابہام ختم ہو گیا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے، عمل یقینی بنائے۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ حکومت مخصوص نشستوں کی خیرات لینا چاہتی ہے، پہلے وہ ثابت کرے کہ خیرات کی حقدار بھی ہے۔ یہ الیکشن عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا۔ مضحکہ خیز انتخابی نشانات ہونے کے باوجود عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا۔ عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے۔ بے ساکھیوں پر چلنے والے لوگوں سے حکومت چل نہیں رہی۔ مخصوص نشستیں حکومت اور اتحادیوں کو ملیں گی یا اپوزیشن کو؟ الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس۔ قانونی ٹیم کی سپریم کورٹ کی وضاحت نئے الیکشن ایکٹ پر بریفنگ۔ اجلاس میں اسپیکرز کے خطوط کا جائزہ لیا گیا، آئندہ کے لائحہ عمل پر غور بھی کیا گیا۔ پنجاب کے بعد سندھ اور کے پی اسمبلیوں کے اسپیکرز کے بھی الیکشن کمیشن کو خط۔ اسپیکر کے پی بابر سلیم سواتی کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ خط میں لکھا کہ فیصلے پر عمل درآمد میں غیر ضروری تاخیر انصاف کا قتل ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ نے خط میں لکھا کہ سندھ اسمبلی کی خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے۔ پارلیمانی نظام کی سالمیت اور آزادی برقرار رکھنا ضروری ہے۔
हमारी असम्बलियां जो है वो अवाम की मुंतखब जो है वो नहीं हुआ करती, तो यही नतीजा निकलता है। हम इस हुकूमत को अवाम का नुमाइंदा नहीं कहते। मेरा तो ख्याल ये नहीं है कि वो पूरा कर सकती है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसियां सामने आ रही हैं, अवाम के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी बढ़ती जा रही है। और ये जो आज पब्लिक जिसके पास मुसवदा ही नहीं है, लेकिन जज्बाती तौर पर कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ नहीं जाना चाहिए, ये वो पब्लिक की नाराजगी है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती नजर नहीं आ रही। हुकूमत पार्लिमान और आवाम की खिदमत कम, ताकतवर की ज्यादा कर रही है। हुक्मरान गलत काम के लिए बज़िद रहे तो JUI रुकावट बनेगी। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुजवज़ा आइनी तरमीम का मकसद हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। इब्तिदा में हुकूमत आइनी तरमीम का मुसव्वदा दिखाने को तैयार नहीं थी। हुकूमत पार्लियामेंट से गलत कवानीन पास करवाना चाहती थी। पीपल्स पार्टी और JUI को दिए गए मुसव्वदे में फ़र्क था। मुसव्वदों के मुताल्लिक़ कन्फ्यूजन हो गई तो कौमी असम्बली में क्या कानून साजी हो सकती है। हुकूमत के पास अक्सरियत ही नहीं थी, सारा दारोमदार हमारे मेंबरान पर किया जा रहा था। आईनी अदालत के क़याम में भी बदनीयती नजर आ रही है। आइन और अदलिया को तहस नहस नहीं करने देंगे। इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन नहीं बिगड़ना चाहिए। शख्सियात के बजाय इदारों के इस्लाहात की तरफ जाएंगे। हमने कौम की आवाज़ को तक़वियत देने की कोशिश की। हमारा तहरीक इंसाफ के साथ कोई इत्तेहाद नहीं, हम उसूली सियासत करेंगे। PTI चाहती है कि पार्लियामान चले और ना ही अदालती निज़ाम। आईनी अदालत के क़याम का बानी PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं। बानी PTI को अपनी ज़ात के अलावा भी सोचना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आईनी अदालत की बात मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा थी। मुल्क में कोई शहरी अदालती निज़ाम से मुतमईन नहीं। इस्लाहात बहुत ज़रूरी है, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम JUI के साथ आईनी तरमीम पर इत्तेफ़ाक़ राय की पूरी कोशिश करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सालिसी की पेशकश, कहा हुकूमत चाहे तो आईनी तरमीम पर अपोजिशन को साथ बिठाने को तैयार हो। आईनी अदालत बनाने के मामले पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बानी PTI मौलाना फजल रहमान समेत सबके दस्तखत मौजूद हैं। अपोजिशन को ऐवान की कार्रवाई में भरपूर वक्त दे रहा हूँ। PAC की चेयरमैनशिप के लिए बार बार अपोजिशन को कहते रहे कि पैनल दें। PTI अरकान की गिरफ्तारी का वाक़या बदकिस्मती पर मबनी है। आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी ने गिरफ्तार अरकान के मामले पर अच्छा किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FBR के थर्ड पार्टी ऑडिट का हुक्म, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। डिजिटाइजेशन अहम मुआशी इस्लाहात में संग मील है। महसूलात में बेहतरी से सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। FBR का इन्फोर्समेंट निज़ाम बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के वफ़द की मुलाकात। चीन कारोई ग्रुप बैनुल-अक़वामी मयार के टेक्सटाइल पार्क्स कायम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ज़िलाई अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरा करने का टारगेट मुकर्रर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो, पीड्स और दीगर ज़रूरी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का प्लान तलब। ज़िलाई अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए खुसूसी पैकेज की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक। इस्लाम में अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए फौरी दरकार तिब्बी आलात की फराहमी का असूली फैसला। लाहौर के PIC, गंगाराम, म्यू हॉस्पिटल, ख्वाजा सफदर मेमोरियल अस्पताल सियालकोट और कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट वजीराबाद में मशीनें फराहम की जाएंगी। गुजरांवाला हॉस्पिटल और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कीथ लैब कायम होंगी। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियों का केस। रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी के वकील रेहानुद्दीन गोलड़ा और चीफ जस्टिस में तल्ख कलामी। वकील ने कहा कि आपने इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर समीना का मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है। वो अदालत में आ गई, उनकी हालत खुद देख लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर रेक्टर बीमार हैं, काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। पूरे पाकिस्तान में रेक्टर के लिए एक ही खातून मिली हैं। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। मैंने किसी के कहने पर सिर्फ एक सो मोटो नोटिस दिया था। क्या हम फिर तौहीन अदालत का नोटिस लेकर जेल भेजना शुरू कर दें?
तहरीक इंसाफ के जलसे से पहले पुलिस इन एक्शन छापे और गिरफ्तारियां शुरू। 2 रोज में पीटीआई के 80 से जायद रहनुमा और कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर पुलिस का पीटीआई के 42 रहनुमाओं और कारकुनान की नजरबंदी का फैसला। असलम इकबाल, महमूद रशीद, वक़ास अमजद समेत 42 अफराद और खवातीन के नाम शामिल। उधर रहनुमाओं की गिरफ्तारियों, सड़कों की बंदिश के खिलाफ समात। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि मफरूजों पर कैसे ऑर्डर पास हो सकता है। जब नजरबंदी या मुकदमा हमारे सामने आएगा तो देखेंगे। ऑर्डिनेंस के तहत एक बकायदा ऑर्डर जारी किया जाएगा कि अगर 184(3) के तहत कोई केस टेकअप किया गया है तो उसमें क्या ऐसी बात है कि वो अवामी अहमियत का हामिल केस है और वो क्यों ह्यूमन राइट्स या पब्लिक इंपॉर्टेंस उसमें इन्वॉल्व है। दूसरा राइट जो इस ऑर्डिनेंस के तहत दिया गया है वो राइट ये है कि 184(3) का जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करेगी किसी भी केस में, उसके खिलाफ अपील का हक जो है वो दिया गया है। जज साहिबान जो भी बात करेंगे केस के दौरान उसका ट्रांसक्रिप्ट तहरीर किया जाएगा। एक बकायदा जो बात की जाएगी उसको तहरीरी तौर पे प्रोड्यूस किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस समात में मजीद शफाफियत लाएगा। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समात के लिए मुकर्रर होगा। 184/3 के फैसले के खिलाफ अपील का हक मिलेगा। अदालती अमल को मजीद शफाफ बनाने के लिए ये ऑर्डिनेंस जरूरी था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार का कहना है कि तमाम अदालती कार्रवाई अवाम की पहुँच में होगी। मुकदमात की समात का ट्रांसक्रिप्ट सबके लिए दस्तयाब होगा। आईनी तरामीम का मकसद मुल्क पर अशराफिया के कब्जे को मजबूत करना है। मुल्क इस तरह नहीं चलते। आईनी तरामीम अशराफिया के बजाय अवाम की सहूलियात के लिए होनी चाहिए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद हक़ार नबासी ने कहा कि मुल्क में निफाक को ख़त्म करने के बजाय इत्तेफाक पैदा करना होगा। सबको अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा। सियासतदान, अदलिया समेत सब हालात को समझें। अपने ओहदों और कुर्सी को छोड़कर पाकिस्तान के मुफाद की खातिर फैसले करने की ज़रूरत है। शहरी को हब्से बेजा में रखने के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम, SHO संजानी और SP के खिलाफ शिकायत दायर करने की हिदायत जारी कर दी। रिमांड देने वाले मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसमें मुलविस पुलिस अफसरों को नहीं छोड़ूंगा। मजिस्ट्रेट भी रोजाना बगैर सोचे समझे रिमांड दे देते हैं। महज इल्जाम से कुछ नहीं होता, शवाहिद होने चाहिए। IG से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके इदारे में मुसलसल ऐसे मामलात हो रहे हैं। मैं इत्तेफाक पर यकीन नहीं रखता। जिस दिन हब्से बेजा की दरखास्त आई उसी दिन FIR और रिमांड हुआ। एक SP 2,500 कनाल अराजी कैसे खरीद सकता है? टैक्स रिटर्न मांगे तो वही आएगा जो टैक्स कटा हो। आपके इदारे में एहतसाब का क्या तरीक़ाकार है? IG ने मामला ज़ाती तौर पर देखने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कमेटी को मुल्क की मईशत की ताज़ा तरीन सूरत हाल, मुआशी इस्तेहकाम और मुआशी अशारियों में नुमाया बेहतरी से आगाह किया। कहा पाकिस्तानी रुपये की कदर मुस्तहकम है। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 26 महीने की बुलंद तरीन सतह पर खड़े हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम में तरसीलात ज़र की मजबूती और तसलसल का किरदार नुमाया है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में मुसलसल और मुस्तहकम इजाफा खुशाइंद है। अफराते ज़र में सिंगल डिजिट की हद तक नुमाया कमी हुई है और इंशाअल्लाह सितंबर में इसमें मजीद कमी वाक़या होने की उम्मीद है। IPPs के साथ हुकूमती सतह पर बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आज़म की बनाई गई टास्क फोर्स का इजलास। कायमा कमेटी बराए तवानाई में ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर तवानाई ने बताया कि IPPs के साथ उनके मुनाफे में कमी के लिए बातचीत हुई। फर्नेस ऑयल, कोयले की कीमत समेत मुतअद्दिद मामलात का जायजा लिया गया। मुस्तकबिल में कौन से प्लांट ज़रूरी, तमाम मामलात को देखा जा रहा है। पाकिस्तानियों को मुस्तकबिल करीब में अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। हुकूमती सतह पर किसी मुआहिदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। – 2022 के सैलाब और हालिया बारिशों से सिंध के 19,808 स्कूल्स मुतासिर हुए। 29 लाख बच्चे तालीम से महरूम हो गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को हुकाम की ब्रीफिंग। कहा 4,162 स्कूल्स की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। 15,626 स्कूल्स की बहाली के लिए फंड्स मौजूद नहीं। वज़ीर आला सिंध की 2026 तक
سیلاب اور بارشوں سے تباہ تمام سکولز کی مرمت مکمل کرنے کی ہدایات، کہا بچوں کی تعلیم کا سلسلہ کسی صورت متاثر نہیں ہونا چاہیے۔